Am I audible to you? Sir. I want to know that whether I am audible to you or not, so that I can start. Okay, it means the Shubhankar sir is able to hear me. Okay. So the question what I was saying that earlier the child was having 10 plus 2 education, means 10 years in the schooling system. After completion of 10 years education, he or she was able to enter in the board system, board education system or board examination system. But the pre-primary education. Can we take the question to another speaker? Hello. Yes, sir. Am I audible? Anji, sir. Please carry on, sir. Okay. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So earlier this was the system 10 plus 2. The child was having the education from 10 years in the schooling, and after 10 years he entered in the board exam system. And pre-primary education was not covered by CBSE or by such education policy. But now what the change is made is that 5 plus 3 plus 3 plus 4. What does it mean? 5 years. It is called foundation stage. That means that after attaining the age of 3 years, a child is entering in the pre-primary education. So 3 years for pre-primary and 2 years grade 1 and grade 2. So in this way, she completes 5 years in education system. Then she enters in the later pre-primary stage. What does it mean later pre-primary? It covers grade 3, grade 4 and grade 5. After that, she enters in the middle age system, middle education system. It's called middle stage. And middle stage means grade 6, 7 and 8. It covers the age group of 11 to 14. Previously, the that is foundation stage and later pre-primary stage, both include the age group of 3 to 8. And after that, after completion of 3 years education, the child enters in the 4th stage, that is higher stage. It includes class 9th, 10th, 11th and 12th. So in this way, this system is called 5 plus 3 plus 3 plus 4, total 15 years of education. 5, 3, 3 and 4. So, and one more thing, that 3 to 6 years, it is called early childhood care education, ECCE, early childhood care and education. This education is brought in the bracket of the new education system. This is the basic change which was not there in the previous education system. Next. Hello. Yes, sir. This is my point of view. Okay, thank you, sir. And now I would like to take the same question to Mr. Shubhankar Chaudhary. Yes, sir. What do you think, sir? 10 plus 2 का जो system इतने सालों से चलता आया था, तो वो अब जाकर के 5 plus 3 plus 3 plus 4 का format में change हो गया है. So, what do you say, sir? What is your input? What do you want to say, sir, regarding this? First of all, good evening to everybody, and many best wishes to I Am Entrepreneur for hosting such kind of a topic. And I ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे इसके बारे में. एक कहावत है कि आप नाक को चाहे सीधा पकड़े या घुमा के पकड़े, बात एक ही हो जाता है. So chronologically, if you see 10 plus 2 and 5 plus 3 plus 3 plus 4, अगर आप ऐड भी करोगे तो 15 साल का एडुकेशन पहले भी था, आज भी है. 10 plus 2 के बाद हम plus 3 करते थे.
क्वेश्चन जो आता है कि कोई भी पॉलिसी खराब या मंद नहीं होती है या अच्छी नहीं होती है, सभी पॉलिसी अच्छी होती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप मत भूलिए सीमा मैम कि आपकी जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ लोगों की है, और जब हम एक एजुकेशन जैसे टॉपिक की बात करते हैं और जहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स, लॉ ऑफ इक्वालिटी, इन सब की चीज़ें की बात आती हैं, तो आर वी रियली जस्टिफाइंग इक्विटेबल एजुकेशन और नॉट? बिकॉज हम सिर्फ अर्बन एरिया की बात नहीं कर सकते, हमें हर प्रांत के बारे में देखना पड़ेगा, एवरी सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। 5 years, that is the ECCE, जो प्रिंसिपल दिनेश साहब ने कहा कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन बहुत ही अहमियत रखता है, पर क्या जो हमारे गांव में जो स्कूल, आंगनवाड़ी जिसे हम कहते हैं, क्या वहाँ के टीचर्स ट्रेंड हैं? क्या उनके पास और भी काम काज नहीं है जो गवर्नमेंट उनको लाभ देती है फॉर डूइंग ऑल द अदर काइंड ऑफ वर्क एक्टिविटीज? एवरीबडी नोज, बट कोई बात नहीं करता इन सब चीज़ों को लेकर। अब एक बच्चे को जो कि एक कली है, सी आई गिव यू एग्जाम्पल सिंस आई एम अ लाइफ कोच, सो आई गिव एग्जाम्पल्स लाइक अ बर्ड। आप एक बच्चा जब किसी स्कूल या संस्था में ज्वाइन करता है तो वो एक कली है, उसको फिर वो स्कूल से निकल के एक फूल बनता है, उसके बाद वो बगीचे में खिलता है जब कॉलेजेस और काम काज करने में चले जाता है। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन उस कली का ही नाम है कि हम उसे कैसे निखारते हैं। It is nothing to do whether you study A, B, C, D, E, F, G, H or you know the time tables, multiplication table की 1 गुना 1 कितना होता है। जो चीज़ इस पॉलिसी में कही गई है वो एक अच्छी चीज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी, आर्ट, these are most important thing for an overall development, holistic development of the child. And वो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो बच्चा या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या सेमी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, वो सभी जगह कर सकता है। बट उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टीचर्स कैसे वेल ट्रेन्ड होंगे, ये एक सवाल है इस पॉलिसी को लेकर। क्योंकि डिबेट अभी होंगे, बहुत डिबेट होंगे। ऑल स्टेट्स विल नॉट एक्सेप्ट अ सिंगल बोर्ड इटसेल्फ। ये भी एक क्वेश्चन आएगा बाद में कि क्या हमारी इंडिया में एक ही बोर्ड रूल कर पाएगी जहाँ पे इतने स्टेट्स हैं। See, these are the questions which even principals know. And I can see Mr. Dinesh is smiling. So, these are certain things. But unfortunately, we are in such kind of paradigm that we cannot voice ourselves properly. This is what I would like to say. Otherwise, the system 5 plus 3 plus 3 plus 4 में क्या है कि आपका जो एज ग्रुप होता है, so the government has to decide कि जब हम एक चाइल्ड को भर्ती करवाते हैं नर्सरी में, तो as on what date? Will it be as on March or as on January? जहाँ पे आज के डेट में एक बच्चा दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली के स्कूल में जो नर्सरी क्राइटेरिया है वो 3+ है। सो एनी चाइल्ड हु इज अबव 3 joins nursery. But now with this policy, a child at the age of 4+ will join nursery as per the circular. So प्ले स्कूल किस तरह से वायबल होगा? क्या प्ले स्कूल 5th तक नर्सरी को आगे करेगा? कैसे करेगा? या स्कूल में ही प्ले स्कूल बनाए जाएंगे? These are the things which has to be discussed. That's all. Yeah, thank you, sir. ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, because it's a great challenge before all the educators, all the stakeholders, कि उसको किस तरह से revamping हो गई है. It is there in the circular, it is there in the in black and white, but उसको implementation कैसे करना है, it's a big question. And when we are going to implement all these things, so सारे pros and cons सब तब ज़्यादा जाके पता चलेंगे. Absolutely right, sir. And now I would like to take the same question to Mr. D.R. Mundan. हाँ जी सर, आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं कि जब ये 10+2 से हट करके 5+3+3+4 सिस्टम हो गया है, तो आप अपने
सर आपके विचारों से ये ठीक है या क्या है? What challenges और किस तरह के challenges आएंगे सर? Mr. D.R. Munden. Yes sir. Madam. Yes, madam. Hello. हाँ जी Hello. सर, बिल्कुल हम सुन हाँ. पा रहे हैं सर आपको. हाँ. इससे बस इतना ही है, फाउंडेशन यानी नींव के संबंधित कुछ मजबूत होगा. गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें क्या है, 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता है. हेलो. हाँ जी सर. हाँ, 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता है और प्राइवेट स्कूलों में तो वैसे ही 3 साल का ही होता है. तो इससे कुछ तो बच्चों की नींव पर फाउंडेशन थोड़ा मजबूत होगा. तो इसलिए ये जो बदलाव है वो अच्छा ही है, खराब तो नहीं है. पर पहले वाली भी पॉलिसी अच्छी है. हाँ. हेलो. हाँ जी सर. बस केवल बाकी हाँ तो जी क्या सर, बताओ, इतना ही बताना चाहता हूँ. अच्छा चलिए ठीक है सर, ये सवाल लेकर के चलते हैं मिस्टर मोहित जैसपारा. यस सर, मिस्टर मोहित, कैन यू हियर मी? Yes sir, what do you say about this policy, about this change in 10 plus when we are shifting from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4? So sir, हम आपके विचार जानना चाहते हैं सर. Yes Mr. Mohit. Hello. Sir, are you able to hear me, Mr. Mohit? Yes Mohit sir. शॉर्ट ही ठीक है, ज्यादा नहीं. बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. हाँ जी मोहित सर, what do you say sir? This switch from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4 in schooling, what does it mean sir? How will it impact our children? How will it impact the parents as well, and even the school institutions sir? Because Hello? अभी तक जो है प्ले स्कूल अलग था और जो 10+2 हमारा फॉर्मेट था वो अलग था. इवन प्ले करने के बाद में बच्चे को प्ले स्कूल के बाद में फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्लास 1 में एडमिशन मिल रहा है. तो अब जो है क्योंकि सिस्टम हो गया है 5+3, so even it is going to impact the play school as well. So what do you say sir about it? हाँ जी मोहित सर. Yeah. Hi. Good evening, everyone. Yeah. Sorry for the glitches. So I don't think it's just simply about summing that 10 plus 2 equal to 5 plus 3 plus 3 plus 4. Yeah, basic maths, it's not that. So in the 10 plus 2 model, only after 10th board exams were the students' assessments being done on a national scale, like just rating them a success or a failure without any performance or learning tracking in between. So 10th board exams were just sort of becoming a performance pressure thing without adding any real value to their learning journey. The aim of this new reform, 5 plus 3 plus 3 plus 4, is to break down a student's complete education journey in smaller stages or checkpoints and quantify them with achievable goals. This will enable them to redirect focus on each stage independently as per the student's requirement at different ages, and also track learning outcomes and progress after each smaller stages. This sort of deregulatory practice is also followed in massive scale businesses, wherein large visions or end goals are broken down into smaller checkpoints and independent teams or products, and progress tracking is done on each of them separately, and corrective measures can be taken on time if required. So this will make the 4 stages sort of independent, and independent reforms and measures can be taken at each stage separately. So we have to first understand what is the significance of each of this, why they have specifically divided into 5, 3, 3, and 4. The first one, ECC or the foundation stage. It's the age group, the formative years for the student. So in this, they will focus on activity-based interactive learning. It will be more directed towards early brain, emotional and values development like teamwork, collaboration, ethics, honesty.
And it's also for ensuring that students actually enter the schooling system through local Anganwadis, Balvatikas. The middle three stage is focused on holistic and hands-on learning like science, maths, arts, social studies, and humanities, which they are learning right now. So teaching them basics, laying the groundwork, instilling curiosity, excitement for learning, and so on. The secondary stage, which is the last four, it's based on multidisciplinary study, flexibility, critical and logical thinking, because by now the children have matured to a little bit. They have can add themselves to what they have been taught, and that is what is actually required in the real world. So I guess the breakdown is very important, so they can focus individually and independently. And if some part of this reform is not working out, let's say one stage is not working out, they can independently reform it and take corrective measures for it. Thank you so much, sir. Absolutely correct. So this is what I would because like to this say. Yeah. reformation, yeah, thank you, sir. So very well said. Even it is going to give a holistic growth to every child, and even if one sector or one setup is failed to achieve the learning outcomes, the desired outcomes, so it can definitely be resolved out at the same stage. And let us move on to the next question. And for this, I just want to ask, first of all, Mr. Shubhankar Chaudhary, how will mother tongue at primary level affect learning outcomes? Because it is also a major thing, major change which is happening. Although we respect all the languages, and India is rich in its cultural heritage, and including all the languages. So in that way, Sanskrit and mother tongue, these languages are given specific space in this reformation, in this policy. So yes, sir, what do you say? Yes, Shubhankar, sir, what do you say, sir? How will mother tongue at primary level affect learning outcomes? Because now the more focus would be laid on the mother tongue, and especially until 5th class. Yes, sir. Seema ma'am, see, I studied from a school which is even now teaches till class 5th in Hindi medium. I'm from Sardar Patel Vidyalaya. In one of the recent interviews it was stated that any student who's learned basic language, maybe through the mother tongue or through their local language, grasp more easily. तो कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, अगर वो कैलकाटा से बिलोंग करता है, तो अगर उसकी पढ़ाई बंगाली में होती है 1st से लेकर 5th तक, तो उसे सीखने में थोड़ा आसानी ज़्यादा होता है. Similarly, if a student is based from Kerala, Tamil Nadu or Karnataka, they will learn from Kannada, Telugu and other languages. Similarly, in Maharashtra, people learn Marathi in their junior level. इससे क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो सीखने की और एंटिसिपेट करने की जो परिभाषा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. So it's not a spoon feeding. So I understand much more better in my own language. So this is a good step in the policy that till class 5th, one should learn via the mother language or any other language which is local, not necessarily English. Yes, medium of instruction. See, you need to understand two things. So medium of instruction after 5th can be in English because all your papers, all your subjects are being taught in that. Similarly, but 1st से लेकर 5th तक है जो subjects होते हैं where they are normally like maths में जैसे गणित हम कहते हैं, या EVS है, या आपका social science है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र, ये सब पढ़ाई जाता है. तो जो मल्टी लैंग्वेज टास्क है, इट्स वेरी गुड, और मल्टी लैंग्वेज विल हेल्प स्टूडेंट्स टू
easily understand the things. Because आज के डेट में भी हम देखते हैं कि any private school which is English dominated, a student who comes from an English medium, if you ask a student of class 1 or 2 a simple thing कि एक wood cutter को हिंदी में क्या बोला जाएगा, probably they will fail to answer. लेकिन wood cutter को अगर उसी के लैंग्वेज में उसे पूछा जाए तो उसे क्या बोला जाता है, he will know or she will know. So language is very important. Communication comes via language. तो ये चीज तो बहुत अच्छा है कि 1st से 5th तक अगर हम इसको लागू कर सकते हैं, जो कि कुछ कुछ स्टेट्स में लागू है अभी भी, ऐसा नहीं कि ये लागू नहीं है, it's still on, but it should prolong. But you cannot force it. You cannot enforce कि no, you have to study it. But it is a good idea. Maybe other principals can show a light on this. Thank you, sir. Yeah. And I'm going to take this question to Mr. Dinesh Dhruv. Sir, what do you say about this thing, about this change, when mother tongue at primary level has been introduced and it is going to be there? It is going to be there, affecting the children, affecting the learning outcomes of the children. Because this is the main motive why mother tongue is given specific space there in this curriculum. Yes, Mr. Dinesh Dhruv. Over to you, sir. Okay. Thank you. It's a good idea. It has been demanding for decades that the primary education should be from their child's mother tongue. वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि जो हम अपने घर से लोग जो भाषा सीख के आते हैं उसमें अगर बच्चे की पढ़ाई हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है. आपको मैं बताना चाहूँगा कि those who have studied इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज और जो भारत के जिन्होंने भाषा का जो बड़ा आंदोलन भी देश में किया लेकिन वो पढ़ के विदेश से आए, वो बताते हैं कि फ्रांस में एक 10% भी अंग्रेजी नहीं चलती है. जापान, रशिया, कोरिया एंड मैनी सच कंट्रीज, दे आर साइंटिफिकली एट द टॉप रैंक्स एंड दे आर नॉट, their language medium of instruction or their teaching medium is not at English. हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से शुरू से ही अंग्रेजी और ये सब चलता रहा और अब आफ्टर 74 years आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहली बार ये मूव आया है कि प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट अपने मदर टंग में होनी चाहिए. पर हम बहुत दूर निकल के आ गए. मैं शुभंकर साहब से थोड़ा अलग स्टैंड ले रहा हूँ यहाँ पर कि हम थोड़ा बहुत दूर निकल के आ गए. देखिए, मैं वो शब्द से शब्द पढ़ना चाहूंगा जो एनईपी में इस पे लिखा हुआ है. वो कह रहे हैं कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट क्लास 5 बट प्रेफरेबली टिल क्लास 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज. यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है. टुडे वी हैव अ डाइवर्स क्लास. हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट? सपोज इन योर क्लास देयर इज अ चाइल्ड हु इज फ्रॉम बंगाल ओरिजिन एंड देयर इज अनदर चाइल्ड. मेरे आर्मी स्कूल में तो पूरे देश से जो आर्मी पर्सनल्स के बच्चे हैं वो आते हैं. उसमें बंगाली भी मिलेगा आपको, साउथ इंडियन भी मिलेगा आपको, और मलयालम वाला भी मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा आपको, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा मिल जाएगा. तो हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड? सेकंड पॉइंट ये आएगा कि आप उस एक की क्लास में सपोज ज्यादा भी नहीं तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 लैंग्वेजेस के ओरिजिन वाले बच्चे हो सकते हैं. तो अब हाउ अ टीचर विल ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? एक पॉइंट, यू कैन नॉट इम्पोज हिंदी. सपोज द लैंग्वेज हिंदी इज ऑफ द मेजोरिटी, मतलब आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और 25 तो हिंदी स्पीकिंग है, बट जो 15 स्टूडेंट्स है वो डाइवर्स लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं. अब इसको इम्पोज कर दिया गया तो आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे? सेकेंडली, जो लैंग्वेज के बुक्स का मसला आएगा इसमें.
कि यू हैव ओनली वन आइदर इन इंग्लिश, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हिंदी मीडियम है। अपने खासकर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको ऐसी बुक्स नहीं मिलेंगी जिनमें जो मल्टी लैंग्वेज हो। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कहा हम बहुत दूर निकल के आ गए, ये वाली चीज अगर आज़ादी के पहले दशक में इम्प्लीमेंट होती तो शायद बहुत बेटर होता। और मैं भी अभी शुभंकर साहब से सहमत हूँ। I have studied in such a school where the English was taught in class 6. 6 से पहले मुझे ABCD भी नहीं आता था। तो ये होता है। अब एक लैंग्वेज की दिक्कत आएगी। Now our teachers are not trained to teach in multi languages. ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करना। सेकंड, I have read many articles on this issue that the people, those who are representing the deprived class, they are saying that this thing is against the poor, कि आपने बच्चे को इंग्लिश की पढ़ने की अपॉर्चुनिटी से दूर कर दिया है। एंड अब ये अलग आया डायमेंशन है इस क्लॉज का, कि जो बच्चा क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में अब इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, अब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहा है, हाउ विल ही ओवरकम द बैरियर ऑफ इंग्लिश विच इज रिक्वायर्ड टू हैव ए जॉब ऑफ हायर सैलरीज। अब आप ये देखिए, हिंदी बेल्ट के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें बहुत रेयर ही होते हैं जो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ अच्छी सैलरी वाले जॉब हैं। उनमें ज्यादातर वो जॉब ग्रैब किए जाते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। एक ये दिक्कत आती है इसमें। और जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अच्छा मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो देयर आर 2 थिंग्स, लैंग्वेज स्पीकिंग एंड लिटरेसी, 2 चीजें होती है। एक तो हमारी बोलचाल है और एक भाषा है जिसमें हम लिखते और पढ़ते हैं। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज जो आती है, स्पीकिंग जो आती है, वो हमारे नेचर से आती है, मतलब बाई नेचर आवर ब्रेन लर्न्स इट। एंड लिटरेसी वी हैव टू लर्न इट। इन स्कूल्स वी लर्न लिटरेसी। हम लिखना और पढ़ना स्कूल में सीखते हैं, और बोलना और समझना घर पे ही सीख के आते हैं। तो ये दोनों चीजों में बहुत बारीक डिफरेंस है, जिसको हमारे स्कूल्स में अभी ये देखने की जरूरत है कि ये एक मुद्दा है इसमें। और इसमें एक पॉइंट मैं और भी बताना चाहूंगा कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये कोई नई नहीं है। ये पॉलिसी 1964 में जो एजुकेशन का जो कोठारी कमीशन बना था, उसके बाद उसको 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1968। 68 में पूरे देश में 3 लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया। अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था, बेसिक उसका जो उसकी आत्मा थी उसको हम लोगों ने मार दिया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी कि चाइल्ड लर्न 1 राष्ट्रभाषा दैट इज हिंदी और इंग्लिश, जो साउथ वाले इसका उल्टा कर लेंगे, और नॉर्थ इंडियन स्कूल्स को एक साउथ की लैंग्वेज सीखनी थी, और साउथ इंडियन स्कूल्स को लोगों को, बच्चों को एक नॉर्थ की हिंदी या कोई इस तरह की लैंग्वेज सीखनी थी। पर हमारे नॉर्थ वालों ने क्या किया कि उस 3rd लैंग्वेज में हमने सरलता के लिए संस्कृत डाल दिया। अब आप में से कोई मेरे से एग्री नहीं करे होंगे शायद, बट संस्कृत इज इन प्रेजेंट एरा, जो एडवांसमेंट का जो सेंचुरी है, इसमें संस्कृत का कोई यूज नहीं है, नथिंग। यू कैन हैव, आपको कोई सूक्त वाक्य ढूंढने के लिए संस्कृत की जरूरत पड़ती है कि योगक्षेमम महावहाम्यम, ये LIC का सूक्त वाक्य है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ और होगा। ऐसे सब हमको अंग्रेजी संस्कृत का इस्तेमाल केवल सूक्त वाक्य ढूंढने के अलावा और कुछ कहीं इस्तेमाल नहीं होता। एडवांसमेंट में संस्कृत का कोई रोल नहीं है। तो लेकिन हमने अपने सरलता के लिए बच्चों को क्या सिखाना शुरू कर दिया, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो हम वहीं पर जो नेशनल इंटीग्रेशन का काम होना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्कूल्स कोई लैंग्वेज सिखाते, तमिल सिखाते या कन्नड़ सिखाते या मलयालम सिखाते, देयर इज अ ग्रेट लिटरेचर रिटन इन दैट ऑल लैंग्वेजेस, पर हम उससे सबसे कट गए। इसका उल्टा वहां पर हुआ साउथ में कि वो लोग इंग्लिश और हिंदी पे ही रहे, इंग्लिश अपनी लोकल लैंग्वेज पे रहे और उन्होंने हिंदी नहीं सीखी। तो हम उस तरह के इतिहास, संस्कृति और कल्चर से नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे वहाँ साउथ इंडिया की सब चीज से कट गए, और साउथ इंडिया वाले बच्चे हिंदी की वो सारी चीज से कट गए। तो इससे जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो काम होना था,
थर्ड लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से, वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस वाले इशू पे जो थर्ड जो मुद्दा है इसको ठीक से सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। Right, sir. This is something, this context we have got to see. Yeah. ये मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला है। Now I would like to take the same question to Mr. D.R. Munden. हाँ, मेरे को पूछ लिया। Yes, sir. Yes, Mr. D.R. Munden. What do you say, sir? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब हमें मदर टंग को हम लोगों ने प्राइमरी लेवल तक कंपल्सरीली माना है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो इवन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हमें 8th तक प्रेफरेबली हम लोगों को मदर टंग यूज करनी है, बट यस करनी चाहिए 8th तक या वे बियॉन्ड दैट, बट प्राइमरी लेवल तक तो ये लैंग्वेज यूज करनी है। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मदर टंग को अगर हम स्कूल का हिस्सा बना देते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? हाँ, यस, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं इस मातृभाषा के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हेलो। हाँ जी सर। हेलो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मातृभाषा से इसमें हमारे जो बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने में दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके मैं पक्षधर में हूँ, जिससे क्या है संस्कृति, हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। थैंक यू मैडम। ओके, वेरी वेल सेड। क्योंकि जो पीयर लर्निंग होती है, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, कि पीयर लर्निंग में भी अगर हम देखें कि अगर बच्चे जो हैं, क्योंकि जब टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो टीचर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, टीचर्स यूज इंग्लिश, बट अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, जिसको पीयर लर्निंग कहते हैं, जिसको हमने बहुत इनिशिएट किया है, एंड इट इज वेरी अप्रिशिएबल एफर्ट, इट इज कंसिडर्ड एज। सो पीयर लर्निंग में बच्चे अपनी भाषा में ही उसको समझाते हैं, और ये मिस्टर दिनेश ध्रुव हैज आल्सो राइटली सेड कि एक जो लिटरेसी जो होती है वो भाषा, और एक हम जो बोलचाल की भाषा है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एक हम यू हैव टू लर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है, और एक हम वी नेचुरली एक्वायर दिस लैंग्वेज। सो वेरी वेल सेड, इट इज सच अ गुड डिस्कशन गोइंग ऑन, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक द सेम क्वेश्चन टू Mr. Mohit Jaspara. Yes, sir. Mr. Mohit Jaspara, what do you say about this concept of multilingualism? Yes, sir. Yes. This is focused primarily on when the students are at a smaller age in primary years. तो प्राइमरी ईयर्स में या ग्रोथ स्टेजेस होते हैं जो बच्चों के, उनमें क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने मदर टंग के कंसेप्ट्स एंड वर्ड्स से ज्यादा फेमिलियर होते हैं, कि वो बचपन से वही सुनते आए बड़े होते हुए, एंड दे लर्न टू थिंक इन दैट लैंग्वेज। सो अचानक जब वो स्कूल में आए, एंड इट्स लाइक यू हैव टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश नाउ, सो दे हैव टू लर्न बोथ लैंग्वेज एंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, which can be little bit difficult for some struggling children. So I think this is a step in the right direction, and it will also promote easier communication between students and teachers. फिर जैसे दिनेश जी ने राइटली कहा कि उनके पास मल्टी लैंग्वेज के टीचर्स नहीं है, एंड ये बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे पेरेंट्स अपने आसपास के स्टेट्स में एमिग्रेट वगैरह करते हैं, so then their mother tongue will change and the regional language will be different. So इसमें क्या होगा, probably this will promote bilateral agreements between states, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के लर्नर्स हायर कर रहा है, दूसरे के लर्नर्स हायर कर रहा है, so probably it will lead to more job opportunities in the humanities sector. And in a time कि लोग अभी ज्यादा बॉर्डर बनाने की बातें कर रहे हैं, बॉर्डर बंद करने की बातें कर रहे हैं, दिस विल प्रोबेबली प्रमोट अ हेल्दी कोलैबोरेशन. देन इन स्टूडेंट्स इट विल आल्सो प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म,
कि student and studies have proven that learning additional languages in earlier years is much easier compared to later in life. So, and they develop an inclination towards grasping sounds, consonants, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के words, context, grammatical context समझ जाते हैं काफी बार दूसरे language का. Like personally, I come from a Gujarati household. I was brought up in Mumbai, Maharashtra, learnt in Marathi, and then I did my college in Punjab. So काफी वर्ड सिमिलर होते हैं, काफी सिमिलैरिटीज होती है. एक तरह से कम्युनिकेशन फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, बट कंटेक्स्ट फिर भी समझ जाते हैं अगर रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रास्प है हमें. और लाइक डीआर सर ने कहा कि कल्चरल सिग्निफिकेंस, बिल्कुल कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसका, कि स्पेशली मेट्रोज में पेरेंट्स अब आजकल दे जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश, कि बस इंग्लिश ही बोलना है बच्चे को. एंड यूसेज ऑफ नेटिव टंग्स ग्रेजुअली जनरेशन्स के साथ कम होते जाता है, कि मोस्टली अब जो न्यू जनरेशन आ रही है मेट्रोज में, वो अपनी नेटिव टंग में लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते. सो दिस इज डेफिनेटली अ कल्चरल एंगल भी है इसका. जी शुभाकर जी, मैं बस एक लास्ट है. और इसमें ये भी होगा कि टेक्नोलॉजी की भी बात सब जगह करी गई है. एनईपी में टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत बार यूज हुआ है. सो इससे ये भी होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स है उनको ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करने पड़ेंगे, कि इंडिया इतना डाइवर्स मार्केट है, वास्ट मार्केट है. सो रीजनल लैंग्वेजेस का एक सपोर्ट भी बहुत जरूरी हो जाएगा. जी शुभांकर जी, आप कुछ कहना चाहते थे? See, Mohit, what I would like to add is simple. The Right. policy, if you read categorically, I'm not talking whether they go beyond 5th and all or not, but till from class nursery to 5th, if the education is promoted in local language, irrespective whether it is Hindi, Malayalam, Telugu, Tamil, Bengali, Kannada, Marathi, till 5th, apart from English, all the subjects can be taught in local language. After 5th, it will be difficult to implement, which Mr. Dinesh has also stated categorically, to get number of teachers of different language. Again, I'm reiterating. Now you say that technology will come into picture. Even technology and what I'm saying is even states can enter bilateral agreements. Bilateral. हमारे पास ये speaking teachers है, आपके पास ये speaking teachers है. We can share resources. Sharing resources is also a major part in NEP. Yes, sir. See, sharing resources, first of all, we need to understand, are we only concentrating on metros or B, C, D towns also? Yeah. See, we need to see all these things. Policies बना लेते हैं, but are we categorically, we are targeting whom? अभी इस question में, she might ask some different questions, Seema ma'am, but what I'm trying to understand is that, कि मेरे को आप बताएं, अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस भी होता है तो क्या ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में लागू हो पाएगा? जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, सिर्फ एक या दो स्कूल की बात नहीं होती है. देयर आर हाउ मेनी स्कूल्स इन इंडिया? कैलकुलेट दैट. वी नीड टू फोकस. दिस इज जस्ट लाइक कि जब 2000 में इंटरनेट आया तो उस टाइम पे भी बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबके पास इंटरनेट होगा क्या? आज भी सबके आज ये भी ऐसे नहीं है कि 2022 में अचानक सब इम्प्लीमेंट हो रहा है. दिस इज अ ग्रेजुअल स्टेज. मोहित, आज भी सबके पास इंटरनेट नहीं है. But the majority chunk does have it. जो जिनके पास वो facilities नहीं होगी, there can be some mechanisms. There are lots of people who don't have even in metros. Please don't jump into that कि 2000 में ये बात तर्क उठा था, अब जाके हो रहा है. Policy is good. I'm not debating on that. Implement कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, वो एक question mark रहेगा. Yes. We are talking about category of people. I'm not saying that you are staying in Mumbai. Even in Maharashtra, there are so many places which are rural. Yeah, there are in many nature. poor villages in Maharashtra, correct. So, okay. Similarly, there would be in Punjab, there would be in Rajasthan, there would be other places. क्या सबके यहाँ पे एक ही जैसा चीज होगा? We are talking like, I'm talking, if we want to talk about everything in same sphere. अगर हम एक एजुकेशन की बात करते हैं जो सबको मिलना चाहिए, तो एक इक्विटेबल होना चाहिए ना. हम उसको अनइक्विटेबल में नहीं कर सकते हैं. Right.
अगर आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर मैं आई डोंट, आर यू फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बाय एनी चांस? Yeah, I've done engineering. You have done engineering. Good. So now you see, you understand. Computers started in the year 90s. Computer Right. 90s में आया हमारे country में after license Raj got over. Right. Due to liberalization, things have started coming in. Now you Right. see, due to this pandemic situation, principals sir are also sitting here. They might agree with me, they might disagree with me. But if you see in every advertisement nowadays, you see White Hat Junior ka advertisement. Do you see that or not? White Hat Junior. Right, I see that. White Hat Junior simply states in its advertisement, new education policy promotes coding from class 6 onwards. Free demo class, take it. मेरे को एक बात बताए मेरे परम मित्र मोहित जसपारा, अगर टेक्नोलॉजी 90s में आ गई थी तो मैंने अपने बच्चों को वंचित क्यों रखा कोडिंग से? क्यों नहीं दिया मैंने 91, 99 और इवन इन 2020? क्वेश्चन ये नहीं है कि अगर हम चीजें वेस्टर्न से लेते हैं हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. आपकी पॉलिसी कोठारी कमीशन, सिंघानिया, देन सुब्रमण्यम, सबके हैं, वेस्ट से भी आपने बोरो किया है, बट हाउ विल यू इम्प्लीमेंट? दैट्स द क्वेश्चन. See, it's everybody. Yeah, it's what they have to do. Like they have the policy, they will have to come up with implementation too. And ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में सही भी हो जाएगा. They will reform it again and again. Debates होंगे जैसे आपने rightly कहा. See, Mohit, I don't know whether you've read newspaper or and not. This is not a debate about capitalism where we can talk about private companies. Mohit, what you need to understand. It's about a reform policy for the entire nation. Mohit, what I'm trying to say is that West Bengal Chief Minister herself has stated that it is not possible to have one board across. For example, Meghalaya की जो बोर्ड है वो कैलकाटा में लागू नहीं हो सकती है. तो पॉलिसी आई, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ है, पॉलिसी ले आई गई है. तो बेसिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसमें अभी भी बहुत सी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट होना है और होगा. पीपल हैव टू गिव टाइम टू इट. टीचर्स को ट्रेन होना पड़ेगा. हम कब से कह रहे हैं कि टीचर ट्रेन होंगे, हम हमेशा कहते हैं टीचर ट्रेन होंगे, पर ये तो चल ही आ रहा है ना. हम कब तक ट्रेन करेंगे? नहीं होंगे सर, बिल्कुल टीचर ट्रेन होंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, टीचर्स ट्रेन होंगे. 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में, शायद ज्यादा भी लग जाए, बट we are talking if it's a step in the right direction or not. We are not talking about if implementation is possible or not. I'm not. So I really agree with you. Mohit, I'm not disagreeing कि पॉलिसी खराब है या अच्छा है, मैं उस पर डिबेट कर ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये इम्प्लीमेंट होगा, अभी तो पेपर में है, पर जिस दिन जैसे हमारे yes sir, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी. जब इम्प्लीमेंट होगा, हम तो सी जब आप इमारत खड़ा करते हो तो अगर उसकी नींव अगर अच्छी नहीं होती तो इमारत टूट जाता है, फिर आप नया बिल्डिंग बनाते हो. Right. Sir, here I would like to add, because basically, no doubt, Shubhankar sir, you are correctly saying that policy कोई खराब नहीं है और इसके अच्छे results हमें आने वाले time में मिलेंगे. Even Mr. Mohit is saying कि we will take 10 years, more 10 years to see the results. So absolutely correct, because basically when we talk about the multilingualism in the context of policy, तो basically जो agenda है, जो एक aim है इसके पीछे, वो यही है कि जो conceptualization है content का वो सही से हो बच्चों में, क्योंकि language should not work as a barrier. Language should support the children to understand the concept. So, and in that regard only this multilingualism and this change has been brought into this policy. And very correctly, you were talking about it, but we cannot get on to only one question. We have lot many questions here, lot many points to discuss. Seema ma'am, so let's move on. Sorry to interrupt you. मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका ये शो बहुत अच्छा है और इसमें डिबेट करने का बड़ा मजा आता है. आप इसको अर्नब गोस्वामी की तरह बना ले बस. I am entrepreneur to be like that, कि सब देखना चाहें कि अब क्या आने वाला है. Okay, soon we will have that thing also, sir.
But here we are talking about Talk Prism, and then we are having a debate, so ये थोड़ा सा अलग हो जाता है. So that's why I had to intervene. Okay, so let's move on. Now the school is multi-stream. How will it impact the students? और इसके लिए मैं सबसे पहले Mr. D.R. मुंडन सर से पूछना चाहूंगी कि सर आप क्या कहते हैं, अभी तक हमारे स्कूल्स में डिफरेंट स्ट्रीम्स थी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस. सो अब जो है मल्टी स्ट्रीम हो जाएगा स्कूल में. सो सर आप कैसे देखते हैं अपने स्कूल में, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सर, क्या इसका इफेक्ट होगा सर? हाँ जी सर. लाइक बच्चे आपस में, लेकिन बच्चे कोई भी स्ट्रीम यूज कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. नाउ दे आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर स्ट्रीम. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, Mr. D.R. Mundan. Sir, are you here? Sir, are you able to hear me? Yes, Mr. D.R. Mundan. Sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए सर. हेलो हेलो. हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी सर. हाँ, मैं यही कहना, बिल्कुल आ रही है सर. इस विषय के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि विषय चयन की स्वतंत्रता से अनुकूल माहौल मिलता है. हेलो हेलो. जी सर, बिल्कुल सही फरमाया सर. हाँ जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको. हाँ, विषय चयन की स्वतंत्रता. सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है सर. अनम्यूट योरसेल्फ सर. सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. I think he's facing some technical glitch. So can we take this question to Mr. Mohit Jaspara? Yes, sir. What do you say about this multi-stream? Regarding multi-stream, like most how is it going to impact the students, sir? When they select, so most undergraduates, when they select a college stream or a career, they never had much experience कि क्या-क्या available jobs है, क्या-क्या available streams है, especially in semi-urban और rural areas, जो शुभंकर जी कह रहे थे tier 2, 3, 4 इन सब areas में, जहाँ पे पेरेंट्स या पीयर्स को ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. ग्राउंड रियलिटी यही है कि इन एरियाज में स्टूडेंट्स अपने करियर या इंटरेस्ट खुद से डिसाइड नहीं करते. दे आर पुश्ड बाय वेरियस चैनल्स, पीयर्स, पेरेंट्स, मीडिया ट्रेंड्स टू डिसाइड विच स्ट्रीम्स टू परस्यू एंड विदाउट हैविंग एनी रियल वर्ल्ड एक्सपोजर्स आउटसाइड ऑफ देयर क्लासरूम्स इन देयर स्कूलिंग लाइफ. जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ, IIT में मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स वहाँ पे आए एंड आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड कि दे डोंट विश टू परस्यू इंजीनियरिंग, कि उनको पता ही नहीं था कि इंजीनियर बनना एक्चुअली जॉब मार्केट में होता क्या है. तो आजकल लाइक ऑल देज आर गोइंग, फ्यूचर जॉब्स जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सब आ जाएगा. तो काफ़ी जो अनस्किल्ड जॉब्स है जो आज के मार्केट में एग्जिस्ट करती है, वो आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद दे वोंट एग्जिस्ट. काफी सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी है मार्केट में जिनको अभी हमें फुलफिल करना है, लाइक फूड, एनर्जी, वाटर, हेल्थ, मेडिसिन, सैनिटेशन. बहुत सारी वैकेंसीज है बाकी सेक्टर्स में, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर. सो इन द फ्यूचर जॉब मार्केट नीड्स फॉर स्किल्ड लेबर विथ मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटीज विल बी अ रिक्वायरमेंट. मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्लाइमेट साइंस, ये and not just a single field. They will have to be well versed in at least one somewhat basic understanding in multiple fields to really contribute. And India has to be an all-rounder to be a $5 trillion economy, which is our goal. And just IT service sector में expertise से we won't be able to reach that. We'll have to open many more industries, many more industrial sectors in India. So multi-stream selection in schooling, this will give
Sir, Hello? I think you have muted yourself. Mohit, sir? Yeah, so just like Yes, I sir, was you're saying, saying something. yeah, so this multi-stream selection in schools will give students independence to try out different interests, learn about which skills they have to apply when they choose a career, and एक तरह से they will get the freedom to make mistakes early on in their lives. कि आगे जाके पता चला हमने तो गलत करियर डिसाइड कर लिया, उससे अच्छा पहले से ही हो जाएगा कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर दिस थिंग. तो ग्रेजुएशन में जाने से पहले या करियर स्ट्रीम सिलेक्ट कर फाइनलाइज करने से पहले काफी उनके पास ऑप्शंस हो जाएंगे ट्राई आउट करने के लिए. So this is my Absolutely fine, thoughts on sir. this. Sir, now I would like to take the same question to Mr. Dinesh Dhruv. Sir, what do you say about this multi-stream system? Yes, sir. What will be the impact on students, sir? Thinking, suppose a child wants to study science, but simultaneously she wants to opt music also. But earlier she does not have any chance whether she is a science student or she can be a humanities student, because music was available only in the humanities stream. तो अब किसी बच्चे का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है तो अपने शौक को अपने उसमें एजुकेशन में कहीं उसको जो उसका फील्ड है उसमें उसको नहीं कर सकता था. नाउ अब ये ऐसा हो गया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव. मुझे हमेशा लगता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि एक सब्जेक्ट काश मेरे पास हिस्ट्री होता या पॉलिटिकल साइंस होता तो मैं और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता. जो आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो लेकिन वो चांस नहीं मिला. अब के बच्चों को वो चांस मिलेगा तो शायद उनका, देखिए साइंस एक अलग तरह का सब्जेक्ट होता है और ह्यूमैनिटीज में थोड़ा अलग तरह की एक्सपर्टाइज और थिंकिंग स्किल चाहिए होती है. लेकिन कोई कोई बच्चा मल्टीपल डाइवर्स इंटेलिजेंस का बच्चा होता है, उसको म्यूजिक भी अच्छा लगता है, उसको हिस्ट्री में भी वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है. तो अब एक चांस मिला है बच्चों को, तो आई थिंक इट इज गुड मूव. बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू ओपन सम काइंड ऑफ काउंसलिंग सेल्स इन एवरी स्कूल, वेदर इट इज गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल. और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो बच्चों को काउंसलिंग करके बता सकें कि उनके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, जिससे वो मल्टीपल और डाइवर्स कोर्सेज को ऑप्ट कर सकें स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी. तभी इसको हम ठीक से समझ पाएंगे. अदरवाइज ऐसे अभी मिस्टर मोहित सर ने कहा कि बच्चों को पता नहीं है कि कौन से स्ट्रीम में जाएं, वो पीयर ग्रुप से और दूसरे लोगों से या फैमिली मेंबर से इन्फ्लुएंस होकर के वो कोई भी चीज़ ऑप्ट कर लेते हैं, बाद में उनको मुश्किल आती है. तो ये मुश्किल अभी भी आ सकती है. तो जब तक स्कूलों में ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेल नहीं बने और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी ये सेल नहीं बने जो साइंटिफिकली बच्चों को ये टेस्ट करके बता सके कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तब तक ये इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं निकलेगा. सर, एंड डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि इस तरह से सेल्स बना करके और बच्चों का इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? वैसे ठीक है कि काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बट इज इट feasible what you are saying? It's going to take, I think, another decade. Although very well said, and this is something looking beyond the situation. Yes, Mr. Shubhankar sir. Yes, sir. What do you say about it? This multi-stream system in the schools. Yes, sir. Sir, kindly unmute yourself. Mr. Shubhankar. I'm Yes, really sir. happy. I really acknowledge Mr. Dinesh taking up a point and saying that the cells should be opened up in schools. काउंसलर्स को बुलाना चाहिए. सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे लोगों की रोजगार और बढ़ेगी. That's a very good suggestion. I think you should go to every school forum. Yes. मैं आपको एक सही बात बताता हूँ दिनेश सर, इवन मोहित एंड हमारे दूसरे प्रिंसिपल सर, कि हर एक स्कूल में मुझे
ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 का पता नहीं, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने खुद लगभग 30,000 बच्चों का काउंसलिंग किया हुआ है अपने हाथों से। और मेरे स्टूडेंट्स आज के डेट में सीईओज भी हैं, शेफ्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं, पर दे आर नॉट एक्चुअली द काउंसलर्स। वो कोई सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं और उनको काउंसलर का भी रोल दे दिया जाता है। देखिए, ऑनेस्टली मैं बोलूं, काउंसलर कोई अलग रूट नहीं है। वो बच्चों की भावनाओं को जानने की कोशिश करता है एंड साइंटिफिकली कुछ टेस्टिंग के टूल्स के थ्रू हम उस चीज को उजागर करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज। लेकिन क्वेश्चन आता है, फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या स्कूल जो बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहती है वो फ्री में नहीं होता है, उसमें कॉस्ट लगता है। और ये हमने देखा हुआ है। You know, I myself have been to many of the army schools. You know, there was one of my colleague, he was running one center, his own company, Map My Study. भोपाल में आर्मी स्कूल में इसको लागू किया गया था एंड वी काउंसल ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड आई नो व्हाट इट टेक्स। इट्स अ ह्यूमंगस टास्क। कितने पेपर्स पास ऑन होते हैं, ऑडिट होता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट मिलता है अगर गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं तो। प्राइवेटली भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी आज के डेट में क्वेश्चन ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या ये स्कूल में हम कैसे डिवाइड करेंगे? वोकेशनल कोर्सेज कैसे लाएंगे? प्राइम कोर्सेज जो प्राइमरी कोर्सेज हैं, वो जो हमारे साइंस है वो तो रहेगा, कॉमर्स है वो रहेगा, आर्ट्स है वो रहेगा, वोकेशनल कौन सी आएंगी? ये एक क्वेश्चन मार्क है। यस, जब बच्चा जो इंजीनियरिंग करता है, जैसे मोहित ने कहा कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं हमें पता चलता है कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था। लेकिन सबसे पहले जो हम स्टूडेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, बट पहले सबसे पहले है कि हम पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज कर सकें। आज भी अपने आप अगर किसी पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनके मुंह से सिर्फ एक चीज निकलता है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये चीज चली आ रही है, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स ने सिखाया उनको, उन्हीं ने दूसरे को डाउनलोड दिया। ये डाउनलोडिंग चलता रहता है। जहां तक टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात है, वहां पे ज्यादा चीजें नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, इसलिए वो बाहर आते हैं। लेकिन जितने टॉपर्स हुए हैं, चाहे वो IIT के हों, चाहे मेडिकल के हो, चाहे सिविल सर्विस के हों, दे आर ऑल फ्रॉम द रूरल सेक्टर्स। तो मैं ये भी कहना गलत होगा कि उनको पता नहीं है कि क्या चीजें हैं, बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर ओन डिटर्मिनेशन व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन ये चीजें अच्छी हैं जो स्कूलों में आ रही हैं। स्कूल में अगर ये चेंजेस किया जाएगा तो नींव बनेगी तो स्टूडेंट्स जहाँ ग्रेजुएट करेंगे तो एक अच्छे जगह से ग्रेजुएट कर पाएंगे, एक अच्छे सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएट कर पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग प्रोफेशनली, बिकॉज आई सी नाउ डेज ऑल इंजीनियर्स आर ईदर वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर और इनटू एनी अदर सेक्टर। बट अगर किसी आप मैकेनिकल इंजीनियर से पूछेंगे कि तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा, आर यू वर्किंग विद एनी फैक्ट्रीज और नॉट? नो, ही इज अ बैंकर राइट नाउ एंड ही इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। बिकॉज क्या दिखता है उसको? पैसा दिखता है सर। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दा आम आदमी की तरह बात करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं शायद आपके जितना या मोहित जितना। मैं इतना जानता हूं कि एक डिबेट में मैं गया था जहां पे आई हैड समबडी फ्रॉम माय पार्टिसिपेंट वाज फ्रॉम दिस उबेर एंड ओला और समथिंग लाइक दैट। बहुत वाह कर रहे थे कि यू नो वी हैव गिवन सो मच ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैंने उस फोरम में सिर्फ वहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, बहुत से दूसरे वाले। मैंने उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि उस फोरम में जितने लोग बैठे हैं, अगर उनकी बेटी हैं जो ड्राइवर आज 1 लाख रुपए उबेर के थ्रू कमा रहा है,
क्या आप उसको अपने बेटी के साथ शादी कराओगे? सब लोग चुप हो गए, because they want somebody from the engineering background, they want somebody from the doctor background. Education is required, and this disciplinary which will come on will help the students, but right kind of vocational. कौन से vocational subjects आएंगे ये important है, कौन से skill based वाले आएंगे ये important है. That's it. Absolutely fine, sir. Because it requires a lot of time to discuss about this point, because multi-stream actually, where this clause is going to enable the children to opt for more of choices. It's not all about catering their needs about humanities, science, and commerce. It's all about catering their choices as well. So in that way, it's going to be fruitful in the days to come. Now let's move on to the next question. How the dilution of boards into semesters will impact the students? And for this, I will ask first of all, Mr. D.R. Mundan. Mr. D.R. Mundan of boards है, board exams जो हैं वो अब semester में change हो जाएंगे. So what do you say, sir? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर. मिस्टर मुंडन, सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हाँ जी सर. हाँ यस मैडम. हाँ सर बताइए. हाँ जो हेलो, बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम बोलो थे, बोलो. नहीं आवाज नहीं आ रहा. जो ये आ ही नहीं रही, साफ नहीं आ रही. बोलो, आप बोलो. आवाज ही नहीं आ रही. नहीं प्रश्न आप म्यूट करो इसको. बोर्ड एग्जाम्स विल बी डाइल्यूटेड एंड देन सेमेस्टर्स विल कम. सो इसका स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट, स्टूडेंट्स पे किस तरह के लर्निंग आउटकम्स हम अचीव कर सकेंगे, और ये फिजिबल होगा या नहीं? I think कोई टेक्निकल ग्लिच है. This question to Mr. Dinesh Dhruv. Mr. Dinesh Dhruv, would you like to throw light on this topic, sir? Yes. How the dilution of boards into semesters will impact the students? Obviously, it will reduce the burden of syllabus and learning. Once the the entire syllabus will be divided into obviously two halves. We have seen this kind of pattern in the year of 2009 when CCE was implemented by UPA2 government in all CBSE schools. So that time also the children got the burden lesson, and again in the year of 17 the board returned. जैसे कहते हैं कि ये वापस से रिटर्न हो गया सी बोर्ड, तो वापस से बच्चों पे एक तरह का बर्डन आया. बट ये बर्डन लेस होने से बच्चों को भी फायदा है, और ऑब्वियसली स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा, और पेरेंट्स को भी जो प्रेशर होता है एग्जाम डेज का वो निश्चित रूप से कम होगा. और इसमें एक प्लस पॉइंट मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, जो मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहा हूँ, कि इफ a burden is reduced of learning the thoughts and learning facts of education, then the child can move in some other direction also. Other direction may be कि ये उसको हम बच्चे को और चीज़ें सिखा सकते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. सपोज एक बच्चे को आपने पढ़ाई के साथ साथ आपने उसको म्यूजिक की डायरेक्शन में डाल दिया है, या उसको थोड़ा आर्ट्स की डायरेक्शन में डाल दिया है, उसका टाइम थोड़ा सेव हो गया उस पढ़ाई से सेव हो करके उसको हमने कुछ हॉबीज की तरफ डाल दिया है, तो वो उसके बच्चे का जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होता है उससे, और उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है.
और अगर अदरवाइज वो पूरे टाइम फैक्ट्स और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में लगा देता है, तो उसका जो टाइम और एनर्जी बचेगी वो अभी स्कूल्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बचे हुए टाइम और एनर्जी को वो कैसे चैनलाइज करें कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चे को मुड़े और वो सोसाइटी को और इंडिविजुअल को दोनों को बेनिफिट। सो इट्स अ गुड मूव फ्रॉम as I see it. Thank you, sir. Very well said. It's going to give a positive transformation to the students' learning, and their energy would also be channelized in the right way. So let me take this question to, yes, sir, Mr. Mohit Jaspara. What do you say, sir, about this? The dilution of boards into semesters. I have somewhat contradictory views on this. According to me, this Yes, is sir. only being thought of from the students' perspective. Like exams reform होंगे, जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि burdens कम होगा, एक marks based end of the year competition के बजाय it will be a core essentials judging throughout the year assessment system. But definitely good from the students' perspective. But looking from the school or teachers' perspective, I think execution बड़े scale पे possible नहीं हो पाएगा कि जब आप एग्जाम्स बढ़ाओगे, सो अभी जिस तरह से पेन पेपर ऑफलाइन मॉडल में एग्जाम्स होते हैं, तो इतने एग्जाम्स कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत ज़्यादा एक तरह से डॉन्टिंग टास्क हो जाएगा स्कूल्स एंड टीचर्स के लिए. एंड दिस विल इंक्रीज द नॉन एकेडमिक वर्क फॉर टीचर्स कि इतने सारे बार बार एग्जाम्स हो रही है, बार बार पेपर्स ग्रेड करो, बार बार मार्क्स निकालो, बार बार मार्कशीट दो, बार बार पीटीएम बुलाओ पेरेंट्स के साथ. सो ये नॉन एकेडमिक वर्क टीचर्स के लिए ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा. अब बात आती है इफ दे वांट टू एग्जीक्यूट इट एफिशिएंटली ऑन स्केल. सो आई एम सॉरी, आई हैव टू मेंशन टेक्नोलॉजी हियर. सो टेक्नोलॉजी में फिर ऑनलाइन असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, ऑटो पेपर जनरेटर, ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस होगी अलॉन्ग विद टाइम, जिससे कि असेसमेंट्स एग्जाम्स लेने का टाइम कम हो. बट इफ दे ट्राई टू रिड्यूस टाइम, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द कॉस्ट. सो कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो इवेंचुअली ट्यूशन फीस भी इंक्रीज होगी. सो एंड एनईपी में टीचर्स को भी काफ़ी कवर किया गया है एंड टीचर्स के साथ टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी कवर किया गया है. बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्कूल्स एंड टीचर्स डू हैव एन अवर्जन टू टेक्नोलॉजी. अभी वो उतना कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ. दे लाइक डूइंग थिंग्स इन द सेम ओल्ड वे जो आज तक 20 साल से सीखते आए हैं. सो गेटिंग देम कंफर्टेबल, चेंजिंग देयर माइंडसेट्स अक्रॉस ऑल लेवल्स, टीयर 1 से लेके टीयर 4 रूरल एरियाज तक सबके माइंडसेट चेंज करना, स्कूल्स के, प्रिंसिपल्स के, सब टीचर्स के, और अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर लाना इतने मैसिव स्केल पे. 30 करोड़ स्टूडेंट्स है इंडिया में करंटली, एंड जिसमें 2 करोड़ आई गेस ड्रॉप आउट्स भी है. सो एंड जो बढ़ेंगे नंबर, जो इतने मैसिव स्केल पे इतना बड़ा टीचर पर्सपेक्टिव या मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव या स्कूल पर्सपेक्टिव से चेंज लाना, दिस विल बी रियली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, आई थिंक. Thank you, sir. Thank you, Mohit, sir. Now I would like to take this question to Mr. Shubhankar Chaudhary. Yes, sir. What do you say about this? Yes, sir. What do you say about this dilution of boards into semesters? So how are the children going to be affected, sir, with this? जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए है ये बात, I think it's a good move. दिनेश सर ने एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ कही थी, मेरी मुंह की बात उन्होंने कह दी थी कि सीसी को लागू किया गया लेकिन फिर उसको बदलाव कर दिया गया बोर्ड को लाकर. मैं यही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको हम ट्रेन करेंगे और कैसे लागू होगा. सीसी जो कॉन्सेप्ट था वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ टीचरों ने समझा, कुछ टीचरों ने नहीं समझा, और नतीजा क्या हुआ? वी हैव टू बैक आउट, वी हैव टू कम बैक इनटू आवर बोर्ड सिस्टम अगेन. अभी का जो एनईपी जो कहता है वो ये कहता है कि 10th क्लास में बोर्ड नहीं होगा, 12th क्लास में और 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम होगा, बाकी क्लासेस 6th onwards will have an assessment. Now that assessment, whether you do it half yearly and then final year, यानी कि
सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, दैट्स इट. और हर स्कूल में यूनिट टेस्ट होता ही है फॉर जजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस. सो दैट इज नॉर्मल. बट द होल क्रक्स जो ये है कि हम टीचरों को किस तरह से ट्रेन करेंगे. टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोहित साहब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी प्लेज अ गुड रोल, वाइटल रोल. लेकिन टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. आज आप एक प्रिंसिपल से जाके पूछिए मोहित जी, आप तो वो नाम ले रहे थे, वरना पता आपने बोलना करो अपना. अरे भाई बोलना, मेरे को ये भी ढंग से एक एक शब्द ये नहीं आया. अब क्या है, बोर्ड सेमेस्टर में मतलब जो सेमेस्टर के मैं कमजोर पद में वो का असर सर, कैसा होगा? excuse me sir, I think Mr. D.R. Munden, sir please mute yourself. I will definitely come back to you. आप पहले शायद से कोई टेक्निकल ग्लिच था. I will definitely come back to you, but let Mr. Shubhankar Chaudhary continue. So technology wise teacher will adopt things, लेकिन आज भी स्टूडेंट मिस कर रहा है स्कूल को, टीचर मिस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक है ना, वो तो अपना फोटो दिखाते हैं टीचर को. लेकिन जो स्टूडेंट्स बड़े क्लास में है ना मोहित, they switch off their videos. Teacher doesn't know कि whether he is really understanding the concept or not. लेकिन टीचर को तो पढ़ाना है. टीचर अपने आप को स्विच ऑफ नहीं कर सकता. जी सर, मैं कहना चाहूंगा सर, मैं भी मानता हूँ स्कूल्स खुलने चाहिए. No, All those schools, let students come to schools. I agree with you. But yes, technology wise, they have to adopt. लेकिन क्वेश्चन फिर से आ जाता है, आज भी हम लोग हंगामा करते हैं कि यार जहाँ पे चीजें आएंगी वहां पे कॉस्ट भी बढ़ेगा. अब वो बर्डन कौन लेगा उस कॉस्ट का? जैसे मोहित तुमने कहा कि अगर मैं टेक्नोलॉजी दूं तो फीस बढ़ेंगी. अब ये फीस किसको पे करना होता है? एक पेरेंट को पे करना होता है. तो क्या वो पेरेंट बियर करना चाहता है? हम प्राइवेट स्कूल की बात छोड़ देते हैं और हम गवर्नमेंट स्कूल की बातें करें. अगर तुम कभी भी मोहित, आई विल इनवाइट यू टू दिल्ली. आई डोंट नो अबाउट मुंबई. आई डोंट नो, do you belong to Mumbai? I belong to Mumbai. Right now we are based in Jaipur. Okay, I'll call you in Delhi. I'll invite you personally, and I'll tell you to please visit the government schools. Right. And talk to the kids. उन्हें क्या चाहिए? आज तक किसी ने नहीं पूछा कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए. मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें साइंस पढ़ना है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें आर्ट्स पढ़ना है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें कॉमर्स पढ़ना है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम वोकेशनल पढ़ोगे. क्या मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चे तुझे क्या पढ़ना है? Sir, I think here I would like to say something, because when we are talking about when boards have been diluted and semesters are coming, getting into the way. So semesters are going to assess the children, and children will also get to understand this thing, that now the time has come when they need to do continuous studies. It is not that board exams would be enabling them to study, not to study throughout the year, but yes, by the end of the year they would be studying and they would be getting the good grades. But now when semesters are getting into the way, so semesters are going to tell them or enable them to go for continuous learning. Yes, so true. Here, That's yeah. true. And secondly, that's there. see, yeah. And one more thing, sir, when we are talking about government schools and when we talk about private schools, so obviously it takes time for the parents to get to know, to get to agree that yes, this technology is good and we need to give in to this technology, we need to pay for it. So it takes time, but yes, it would happen. Definitely it will happen. And what Mohit sir is expecting, aspiring for, definitely your dreams will also come true in that sense. Now I would like to take this question to, I think Mr. D.R. Munden was speaking something. I would like to take this question to Mr. D.R. Munden. Yes, sir. Mr. D.R. Munden. Yes, sir. हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे, मिस्टर D.R. Munden.
सर आप कुछ कह रहे थे बोर्ड्स के लिए when boards have been changed or have been phased out with semesters. I think there is some technical glitch. He's not able to unmute himself, I think. So let us move on to the next question. What qualitative changes the NEP 2020 will bring to our education system? Although we are all talking about one by one, we were talking about the concept, the changes that we are going to observe in the terms of different subjects like boards, when we talked about multilingualism. So on the whole, what qualitative changes the NEP 2020 will bring to the education system, to the entire education system? पूरे एजुकेशन सिस्टम पे इसका क्या असर रहेगा? सर, डॉक्टर मुंडन, सॉरी, मिस्टर मुंडन, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? मिस्टर मुंडन, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think again he is facing some problem. Let me take this question to Mr. Dinesh Thro. See, our education system is the second largest system in the world. If you have the data, there are more than 30 crore students and 1,028 universities and 45,000 colleges and 14 lakhs schools in this way, and more than this बता रहे थे कि more than 60 lakhs करीब teachers. So this system cannot be changed in one day or overnight. This system will take time to be changed. I can remember that when this new education policy came in India in 1986, पहली बार बड़ा उसका हम लोग तो that time I was in school only, 86. But it took 6 years to come in Rajasthan. राजस्थान में इसको आने में 6 साल लगे, जब यहाँ पर 10+1+3 सिस्टम से 10+2+3 सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ. 5 से 6 साल लगे. You can understand that India कितना बड़ा country है. There are several states, multiple culture, multiple languages. Thousands of schools are there. So it will take time to change India and our education system. But few things are there to be remembered. That one of panelists says that one board can't be possible in India. There are several states, and every state has aspirant to have its own education system. Second, जो बेसिक जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे इसमें दिखाई देते हैं वो ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा. So I think it will reduce the burden and time and money of the lakhs of students. और जो मुझे इसमें जो पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है वो मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम इन द यूनिवर्सिटी. ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इफ अर्लियर क्या होता था कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया और सपोज ड्यू टू सम रीजन उसकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गई तो वो उसका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा हुआ बेकार हो जाता था. नाउ इट हैज सम सेंस कि उसको आफ्टर 1 year he can or she can have a certificate, 2 years she can have a diploma, and after completion she can have a degree. तो वो उसको that is a good move. I think it should be done earlier also. पहले ये हो जाना चाहिए था, बच्चे की पढ़ाई और बेकार हो जाती है उससे. और इसमें जो बेसिक पॉइंट है मैं इसमें बस शॉर्ट में ही आपको बताना चाहूंगा कि मल्टी लेवल और वन अम्ब्रेला को आई टोटली डिसएग्री.
कि एक अम्ब्रेला के अंदर सारी एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। ये एज मेरा पॉलिटिकल मूव इसमें हो सकता है, बट जो स्कूल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ, मीडिया, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, सारे एजुकेशन को आप अगर एक अम्ब्रेला में डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मूव। ये पूरे देश में इस पे चर्चा होनी चाहिए थी और इस पे चर्चा नहीं हुई। इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। कोई एक सरकारें आती जाती रहती हैं, बट इट शुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट फोरम। कि आपको मैं बताना, इसमें कहते हैं 2 लाख सजेशंस वर रिसीव्ड। हम पैनलिस्ट में से किसी ने सजेशन डाला था जब ये ड्राफ्ट बन रहा था? आई थिंक नो, आपने डाला था। थैंक यू सर, यू आर सच ए इस तरह के लोग हैं कि आप अवेयर है कि आपने डाला। सो इन दिस वे, एक उसमें फोरम में एक छतरी के नीचे सारी चीजों को नहीं डाल सकते, इसका डिस्कशन होना चाहिए था और ये होना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इंडिया विल चेंज, बट 1 साल नहीं लगेगा इसको करने में, बहुत टाइम लगेगा। See, I was talking about even this policy has got good features as well. And apart from, because it's going to implement, it will take some time. But yes, it's good. And now I would like to take the same question to Mr. Mohit. Yes, Mr. Mohit, what do you say about this? Overall, when you see this policy, so how do you see this, policy? What qualitative changes this NEP 2020 will bring to our education system? Yeah, thank you, Seema ji. So first मैं कहना चाहूँगा कि दिनेश जी, मैं आपके जो एक्सपीरियंस एंड आपके जो थॉट्स है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू लर्न फ्रॉम यू एंड आई एम रियली कि बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया आपके थॉट्स है. सो रियली थैंक यू टू बी ऑन दिस पैनल. एंड आई अग्री कि मतलब इंडिया में देयर कैन नेवर बी अ सिंगल सॉल्यूशन. इंडिया मोस्टली जैसे चाइना की तरह इंडिया भी इतनी वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है, इतने लैंग्वेजेस है, सब रीजन्स की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है. सो एक ही जो सर ने कहा अम्ब्रेला में सब कुछ लाना, इट विल नेवर वर्क आउट इन इंडिया. कि हर एक पे इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ सॉल्यूशन कि सबको फोकस में लेके चले. सो ये बिल्कुल ही टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ही ये मुश्किल टास्क होने वाला है, विच आई एम नॉट श्योर कि इट विल बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली. सो ये एक है, बिल्कुल है डाउट. अब कुछ पॉजिटिव पे अगर मैं फोकस करूँ, देयर वर सम पॉइंट्स जब मैंने रीड करी एनईपी पूरी, I found some points which I really liked and I would like to highlight those. So one thing was lesser focus on marks and more focus on learning. Marks importance within past 20-25 years India में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है and it's become a rat race. So marks importance से क्या होता है, children they are subjected to pressures, disappointments, they learn to hate themselves, they feel inferior to their peers and all this from an early age. So this will hopefully reduce. Overnight नहीं होगा. पेरेंट्स का माइंडसेट, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स का माइंडसेट नहीं चेंज करना, पेरेंट्स का भी करना है इसमें. सो बहुत ही ये लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर डेफिनेटली ये प्रोसेस पे काम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट दे नो, व्हाट दे आर गुड एट, व्हाट दे लर्न. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर जो आजकल मेंटल वेलबींग का भी जो डिस्कशन चल रहा है कंट्री में, उसके लिए भी ये ज़रूरी चीज़ है कि उनको प्राउड फील कराया जाए, उनको इंस्पायर्ड फील कराया जाए एंड सिर्फ मार्क्स के दम पे किसी को ऊंचा या नीचा ना बताया जाए. देन सेकंड थिंग आई लाइक इज पीयर ट्यूटरिंग. सो पीयर ट्यूटरिंग स्टडीज हैव प्रूवन इन मेनी कंट्रीज, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ये किया हुआ है या गुड डेवलप्ड कंट्रीज,
इससे लर्निंग आउटकम बेटर होता है कि लाइक देयर सेन सेइंग टू टीच समवन इज टू लर्न योरसेल्फ ट्वाइस. सो एंड इसमें क्या होगा कि जो इमीडिएट हायर स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं या उनके साथ वाले, दे विल टीच अंडर अ टीचर्स गाइडेंस their peers or their juniors. So this will also instill values of sharing knowledge, helping, caring for others. So peer tutoring is also a good addition. Then there was one thing, offering subjects at 2 levels, a basic phase and an advanced phase. So this is also, I think, a step in the positive direction. This will ensure that most students learn basics of subjects which will help them in future learning. Like let's say अब किसी को मेडिकल या डिप्लोमा करना है आगे, तो वो एडवांस मैथमेटिक्स सीख के क्या करेगा? दे वोंट नीड इट इन देयर लाइफ और करियर, सो दे विल बी टॉट बेसिक मैथमेटिक्स जो सबको सिखाई जाएगी, तो दे कैन यूज इन देयर डेली लाइफ. सो ये होगा कि एटलीस्ट बेसिक्स आर कवर्ड फॉर एवरीवन एंड स्टूडेंट्स विद स्पेशल इंटरेस्ट और एकेडमिक एक्सीलेंस इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कैन परस्यू द एडवांस्ड फेजेस ऑफ दोस. देन आजकल भी अभी भी जो लॉकडाउन का आया है, एंड वन थिंग मेंशन्ड इन एनईपी इज ब्लेंडेड लर्निंग. तो देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स. सो ब्लेंडेड लर्निंग का पॉजिटिव्स ये है कि एक स्कूल जिसमें डिसेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मल्टीपल सेक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड के, लेट्स से 10 सेक्शंस है हर स्टैंडर्ड के. सो टीचर्स को क्या करना पड़ता है, सेम चैप्टर्स हर स्टैंडर्ड में बार बार बैक टू बैक पढ़ाना पड़ता है. सो इट बिकम्स सॉर्टेटिव टास्क. ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा कि पहले स्टूडेंट्स को मटेरियल दे दिया जाएगा कि दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, यू रीड अप ऑन इट, यू वॉच सम वीडियोस ऑनलाइन. जो मटेरियल आपको मिलता है स्कूल की लाइब्रेरी में आइए पढ़िए, जितना मटेरियल आपको मिलता है उससे आप पढ़िए, एंड देन इट विल बी जस्ट डिस्कस्ड इन क्लास. आप क्या सीखे इससे, व्हाट आर योर डाउट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड, सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म. ये क्लासेस में ये हो जाएगा एक एनवायरनमेंट. So this is also a good thing, blended learning. And इससे ये भी होगा कि टीचर्स की जो repetitive tasks है वो कम हो जाएंगे and they will be better able to focus on academics. अब एक ही चैप्टर 10 दिन 10 क्लास में पढ़ाना है, उससे अच्छा एक बार अगर मटेरियल भेज के अगर डिस्कस हो रहा है, then they can focus on the next material. Already India struggles with a low student to teacher ratio, and overburdening teachers with non-academic work is not a good thing. So, but one thing I feel in this NEP, they have, I think, ignored teachers to some extent. कि एजुकेशन इन सिस्टम में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, टीचर्स भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है. सो रिफॉर्म्स उनको भी माइंड में रखते हुए कि स्टूडेंट्स जो अब पढ़ रहे हैं उनको तो चीज़ें सिखाई जाएगी, बट टीचर्स जो पिछले 15 साल से 20 साल से पढ़ के निकल चुके हैं, they can't just immediately adapt to everything. So इसके लिए भी उनके लिए जो टीचर मेंटरिंग प्रोग्राम्स एंड टीचर कोर्सेज जो अभी एग्जिस्टिंग टीचर है, नॉट जस्ट द न्यू वंस which will pass through TET and all that, but जो existing teachers है, even they will be have to be taught and to adapt and implement these things and to use it to their own benefit. सो ये कर होते भी है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी लोग ने इम्प्लीमेंट कर भी दिया है. सो इफ वी वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, देन या इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत रिफॉर्म्स आएंगे अभी तो इसमें, दिस वोंट बी द फर्स्ट रिफॉर्म, बट देयर आर सम पॉजिटिव्स टू इन दिस. Thank you, Mohit sir. You have very well briefed about various features of this policy, about 360-degree assessment, about peer tutoring, blended learning, and yes, definitely challenges that the teachers are going to face. So very well said. Let me take this question to Mr. D.R. Mundan. Sir, are you able to unmute yourself? हाँ जी सर, मिस्टर D.R. मुंडन. सर क्या आप सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को.
हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी की जो क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटेटिव चेंजेस आए हैं इस पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मिस्टर D.R. Mundan, I think still there is some technical glitch. Let me take this question to Mr. Shubhankar Chaudhary. Sir, what do you say, sir? When we talk about the qualitative changes, the NEP 2020, what all qualitative changes it has brought, sir, in the terms of education system, sir? Yes, Seema मैम, जहाँ तक प्रोज एंड कॉन्स की बात है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इट्स ऑल क्वालिटेटिव. आई एम नॉट प्रो बीजेपी और नीदर आई एम अ कांग्रेस और नीदर एनी अदर दिस थिंग, but it's all qualitative. It's good. It has been introduced in the school level at least, because मैं हमेशा मानता हूँ कि जो सीड है वो स्कूल से ही ग्रो करता है. तो स्कूल में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स जो बच्चे का ओवरऑल डेवलप कराएगा फ्रॉम स्टेज 1, दैट इज द ECCE, इट्स अ गुड थिंग और ये होना चाहिए. लेकिन हम कैसे इक्विप करेंगे वो सवाल बार बार उठेगा और हमेशा ही उठेगा. लेकिन जो पॉलिसी है, जैसे हमने वेस्टर्न से बोरो किया है, सब जगह से बोरो किया हुआ है, हम उसे अगर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें तो इट वुड बी अ गुड पाथ फॉर अनदर 20 years और 2040 तक चलेगा. जहाँ तक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की सवाल है, जो अभी सब लोग मेरे जितने पैनलिस्ट हैं वो इनकी वाह कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें ये पॉइंट लगाना चाहता हूँ, अंकुश लगाना चाहता हूँ कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर बाय चांस ड्यू टू एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट or any other reason I drop out and I get a certificate. Now, what value that certificate will hold, I don't know right now. मैं वापस आके कंटिन्यू करता हूँ स्टडीज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट क्या वैल्यू होगी, वैल्यू प्रपोजिशन क्या होगा, ये तो आने वाला साल बताएगा जब ये लागू हो जाएगा. जहाँ तक अम्ब्रेला की बात है कि एक ही अम्ब्रेला, देयर विल बी वन रेगुलेटरी बॉडी, यस वी ऑल आर अपोजिंग दैट कि there should not be. If you're getting it into one body, why you are having authorities also, because that will again create problem. See, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कोई पॉलिसी में नहीं है, प्रॉब्लम उसके एग्जीक्यूशन में, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक लेवल आ जाता है, पॉलिटिकल लेवल आ जाता है. ये प्रिंसिपल्स भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं. हम इस फोरम में बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से फोरम में नहीं बोला जाता. पर ये हकीकत है. जैसे जो लोग गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो वो बाहर निकालना चाहेंगे लेकिन नहीं निकाल पाते. उन्हें भी पता है कि कैसे निकालें. आज मैं ये टेक्नोलॉजी जो मीडियम है ना, बहुत खतरनाक मीडियम है. कहीं पे किसी ने सेव कर लिया और प्रचार कर दिया तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा. ये एक सोच हमेशा रहेगी. So everything is good. I'm not against anything, and I'm really happy that I got lots of suggestions and thoughts and views from other panelists, especially from the technocrats and the principals of other schools. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. Very well said. Because this policy, exactly, it has such positive aspects, and although it would be challenging itself, it's going to take a lot of, it would be a heavy toll on the teachers and on the stakeholders head, I know, and it's going to be you can say a challenge for each one of us, and not only the stakeholders, but even as a parent, as students, everyone. Even it is appreciated by the students as well. They are also looking forward to have all these changes. So
So I would say at the end, because now I'm not going to ask any more questions. Every question was well responded, and it was such a fruitful, productive discussion. So let me say, at last, it is a progressive shift towards a more scientific approach to education, and the prescribed structure will help to cater the ability of the child, different stages of cognitive development, as well as social and physical awareness. If implemented in its true vision, the new structure can bring India at par with the leading countries of the world. And with this positive notion, I would like to thank all the speakers. Thank you, Mr. D.R. Mundan. Thank you, Mr. Dinesh Dhruv. Thank you, Mr. Shubhankar Chaudhary. And thank you, Mr. Mohit Jaspara. And a special thanks to all the viewers and partners who helped us. And thank you all for taking time out for such a productive session with us. And with this, on behalf of I'm Entrepreneur and Seema Sharma, sign off the session. Have a great time ahead. Thank you all. Yes, sir. I just have one request to Mr. Dinesh Dhruv, sir. Please call I Am Entrepreneur in your school. I'll also come personally and visit your school and would love to address your students and your teachers via this platform and try to learn things from them. Thank you. And thank you, Seema ma'am, for giving me such an opportunity. Thank you, sir. Where I'll get an opportunity to call you in my school, sure, I'll call you. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Dinesh Dhruv. Thank you, Mr. Shubhankar. Thank you. Because we maybe in some another session, we all meet again. So we are looking forward to another fruitful session soon. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you, everyone.